Good morning, all of you. Good morning, Miss. Good. So, just keep your camera on for a while and your mic should be off. I will ask you to turn it on. Okay. Shreya, keep your cameras on, beta, so that I can see you all. Sayan is there. Mitul is there. Okay. Good. Pratyush is also there. Utsav, Aditya, Sayan, your camera is also off. Be on the screen for a while. Okay, good. Aditya, एक लड़की भी है ना. Aditya, turn your camera on, beta. Can you hear me? Okay. Keep your cameras on. You will not go off camera till I say. Okay. Fine. So I think this is our first online class, and as we know that now till the next everything will be normal and the situation will be smooth. Till then we will be meeting right like this only. uh, okay, I am instructing that those who put your cameras off, please turn it on. Aditya and Aishni also. Okay, you don't have to be off camera. You are sitting in front of me. I know you, all of you. So you have to just show me your face. Okay? And see this. Okay, fine. So as we were doing the chapter cell, am I right? Am I audible clearly? Yes. Okay. So we were doing the chapter cell till last class, and can you just see that till where we have done? We have, I think, we have completed till lysosomes. Yes, ma'am, you are completely right. We have completed till lysosomes, right? Okay, and I Yes, miss. okay, that suicidal bags and how it is helpful for the cell to have the lysosomes, why it is required, the killing and all that, everything we have discussed. Am I right? Fine. So just see to this that next we will be studying regarding plastic. I'm not getting you. What you are saying, beta?
Miss, can you hear me? Yes, I can. Miss, actually, last class we completed lysosomes, but I asked that Golgi bodies help in formation of cell plates. So, what is cell? Cell plate. Yes, ma'am. Okay, that cell plate is something it is required when the cell is dividing. Okay. Okay, cell plate is something I will just show you over here that you are talking about cell plate. It is formed during cell division. That you will learn when you will study cell division in detail in class 10. At that time you will come to know what do you mean by cell plate. Okay, Okay, ma'am. fine. So shall I proceed with centrosomes and centrioles? Yes, ma'am. Fine. So keep your notebooks ready with you and books ready with you. Okay, and arrange yourself. I'm giving you 2 minutes, arrange yourself. So shall I proceed now? Yes, ma'am. Okay. So centrosomes and centrioles, that what we are going to study. So first understand the centrioles, then you will understand the centrosomes automatically. Okay. So first let me write down. Okay. Miss, we stop already or No, no, beta. It's I think it was the screen was gone. I was finding out centrioles. Okay, first we will study what do you mean by centrioles. Okay, so first of all, do understand that these are the things, or these are the okay. What happened? Anything you want to ask? Okay, centrioles. So as I was saying, that centrioles are the one. They are very important organelle regarding cell division. Okay, because they can be seen very clearly when the cell is divided. Understood this part? Okay,
So, very important structure when you can say that whenever the cell is dividing, a very important structure that is called centrioles. Now, just understand what do you mean by centrioles first of all. Okay, so first of all, they are two in number. That means they are in one pair. I will write like this. Is it clear to you? They are appearing in form of pairs. Okay, so two in number makes one pair over there, and these are centrioles. If I say two in number, one of them will be looking like this. It is a bundle of, because cell is very small, that's why I will write microfilament. Just concentrate. No need to rush in writing and all that. Wait, hold on. I will keep the screen and you can copy down everything. Okay? Just understand what do you mean by bundle of microfilaments. Just imagine the situation that if I have so many pens with me, as you have in your compass box, you have so many pencils, pens with you. So if I say bring all of them, what you will do? You will just make a bunch of it and you will just come to me. Am I right? Yes. Are you getting me what I am saying? Okay. How you will hold all the pens? You will just make bunch and you will bring it to wherever it is required. Okay. So similarly, bundle of microfilaments. There are so many small filaments are there and they just make up one bundle. Okay, these bundles will make centrioles. Understood this part? I will just show you with the drawing over here like this. If this is one filament, so this is another filament, this is third filament. So this is fourth, this is fifth. Is this part is clear to you? Yes. Bundle. Okay, so bundle can be like, it will be little bit like when you are holding your pens, some of them are up, some of them are down, and you can make a bundle. Understood this? Is it clear to you? You can show, you can give this side. Okay, so similarly, there are they are filaments, but they are micro filament. I think you understand the word filament. Yes. Okay. Yes, your voice is cutting. That may be a network issue, beta. We cannot help it out. But just see to it, it will just settle down, move to the better network zone. Okay. So, bundle of microfilaments. So many microfilaments. Micro, why I am writing? Because cell itself is very small. So, the organelle, that is centriole, is also very small. So, all these microfilaments will form a bundle and they will form a one centriole. So, one centriole will be formed. So, they are two in number and they are arranged in right angle to each other. How it will arrange? Let me show it to you. So right angle means one is like this and another one is like this. This is right angle. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. One is standing and another one is like this. Is it clear to you? Yes. Okay. That's why the symbol is like this. Can I stop the video with for the network? Yes, yes. You can just put off your videos and
Yes, Miss, can you explain after that what is clear to and after what you have explained in a few seconds, please. Bundle of microfilaments. As I said, one bundle is arranged like this and one bundle is arranged like this in right angle to each other. So the symbol of centriole is something like this. Is it clear to you? आ रहा है समझ में? हाँ मिस. Okay, so right angle to each other. Now, these two centrioles, as I have drawn like this, they will gather some of the cytoplasm around it, because we know the cytoplasm is present inside of as a fluid matrix. So this cytoplasm will be arranged around the centrioles, and then this is called centrosome. Then this is called centrosome. Is it clear to you? Yes. Yes, miss. Okay. So a body, as I said, wherever there is a zone, we should consider it as a one body. Am I right? Okay. So zome is a body which contains centrioles. Okay. So centrosome means centrioles plus cytoplasm. Understood this part? Yes, miss. Okay. So this particular body, centrosome, like this, if it is present, it will produce a fiber-like strands. Okay, fiber-like strands are produced from both the side of the centrosomes, and these fibers are called spindle fibers. They are called spindle fibers. So these fibers, what they will do? They will help the cell during cell division. They will help the cell during cell division. Is it clear to you? Yes, yes. ओके, सो सेंट्रियोल्स जो है वो दो होते हैं. ठीक है, एक बंडल जो है वो इस तरह से है, दूसरा बंडल है वो ऐसे है, दोनों राइट एंगल में है. अंडरस्टूड दिस? एंड बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन राइट एंगल, they will look like this. The symbol is given to you. Okay, this is how they will look like. And when they are arranged in right angle, around them little bit of cytoplasm is there. Okay, and this cytoplasm will make a body, special body, and that is called centrosome. Understood this? Yes, miss. And centro. Yes. Can you please explain the diagram? Can you please explain the diagram? What I have to explain? I'm not getting you, beta. Diagram, this diagram. See, listen. This centrosome will produce many fibers from it. Okay, if this is a centrosome, through it many fibers will come out. And these fibers will help the cell during cell division. Is it clear to you? Yes, yes, miss. Okay. Miss, only Yes, central miss. that was the cytoplasm.
Centrioles? Miss, only centro means centrioles the cytoplasm. I'm not getting you, beta. Miss, does only centro means centrioles the cytoplasm? Yes. No. Listen. Centro, that means we are taking the body which contains centrioles. Centrosome, if I have written, the body which contains centrioles. So when these centrioles are attached with cytoplasm, then in total it is called centrosome. Understood this? Clear? Miss, is there any difference between microfilament and microtubules? A little bit that you will study later in higher class. Because in other book it was written centrioles are hollow cylindrical structures made up of microtubules. Microtubules, yes, and they have specific number also. Okay, so that arrangement you don't have to study right now. Just understand that microfilaments, microtubules, they are have some type of arrangement over there that makes the centrioles. Okay, now very important is that it is only present in animal cell. Plant cell, it is absent. Here it is present. Plant cell, absent. Understood this? Yes, miss. Okay, you can write if you want and just let me know once you are finished. Miss, what is present in animals? Animal cells have centrosomes. Plant cell do not have centrosomes or centriole anything. Okay, Miss. Written? Miss, what is mitosis and meiosis? They are the stages of cell division. Mitosis and meiosis. Stage of cell division. Stages of cell division. Understood? नहीं समझ में आया तो पूछ लो. No, it's under. Okay? Shall I proceed for the next? Yes, Miss. Yes, miss. Okay.
Now next are plastids. Shall I begin? Yes. Okay. Now, plastids, do understand that these plastids are present only in plant cells. They are present only in plant cell. Animal cell doesn't have them. Okay. Now, these plastids are of three types. Okay. Three types are there. First is leucoplast, chromoplast, and chloroplast. Is it clear to you? Okay. Now understand this. It is very easy or part of the this chapter to study this because very interesting. So leuco means white. Leuco means white. Okay, or colorless. Anything you can say. Some books write them as colorless, some books write them as white. Chromo means colorful. Chromo means colorful. And chloro means green. Is it clear to you? Yes. Okay. So plast means plastids. The plastid which is white in color, plastid which is colorful, the plastid which is green in color. Is it clear to you? Yes. Okay. Now see this. We will begin with chloroplast first. I think chloroplast is very much familiar to you. You must have heard about chloroplast easily. Am I right? Okay. So let's begin with this. Chloroplast is an organelle have pigment called chlorophyll. Which pigment it is having? Chlorophyll. Is it clear to you? Yes. Chlorophyll is green in color. It is green in color. That's why the name is given chloroplast. Understood this? Yes, Okay. miss. Now just see this that the color green is because of the pigment. Understood? Because chloroplasts have one pigment that is green in color. That is why chloroplast is also named as chloro with the prefix chloro, chloroplast. If I remove the pigment from it, the chloroplast will become transparent. So the chloroplasts have the color green because of the presence of pigment. Is it clear to you? Okay, now see chlorophyll.
Fill means leaves. PHYLL. Wherever there a fill is there, it means leaves. Chloro means, as I have written, green. So green leaves have chloroplast. Is it making sense to you? Yes. Okay. Green leaves have chloroplast in them, which is having pigment chlorophyll. Understood this part? Yes. Yes, ma'am. Okay. Fine. Okay. Now, this because it is green in color and present in leaves, it helps in the function called photosynthesis. It helps in photosynthesis. Shall I proceed now? Yes, ma'am. Okay. Now, chromoplast. As I have written, it is colorful. It can be yellow. It can be orange. It can be red. It can be blue. Okay. So different types of colors will come under this category. Now see this. In the plant, which is the very colorful part of the plant? Fruit. Fruit and Flower. yes. Fish flower petal. Yes, the most colorful part of the plant is flower. Okay, now see, logic you have to apply. Why the flower are having a very attractive color? Because of chromophore. Okay, that is true. But what is the need? Why the flower is not also green? To attract insects, to attract bees, to attract the pollination animals, because flower has to do pollination. Okay, when this particular plant is performing pollination, it is because of the flowers which are very colorful in nature. अगर फ्लावर भी नॉर्मली दिखते ग्रीन कलर के तो कोई भी बर्ड या इंसेक्ट या कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा. So that is why chromoplast is there in the flowers and fruits also, so that a good color can be given, so that pollination can be done easily. So because of chromoplast, pollination is done. Because of chloroplast, photosynthesis is being done. Now come to the leucoplast, white ink. Okay, so see this. Whenever you have to when you are watching out the seed or fruit pulps, basically those who are having a very pale color, all of them are having white color leucoplast in them. Okay, so I let me give you one example of any of the seed. आपने गेहूं को कभी खोल के देखा है? Yes, ma'am. अंदर से वाइट वाइट होता है, देखा है? Yes. क्यों वाइट होता है वो? And क्यों? it is on the floor. हाँ, क्योंकि वो आटा बनेगा. ठीक है, तो बट वो वाइट कलर क्यों है? वो वाइट कलर ल्यूकोप्लास्ट की वजह से है. ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ starch. Storage of starch, because starch is white in color,
दैट्स वाई ये जो जगह है वो वाइट कलर की रहती है. इज इट क्लियर टू यू? Yes. ओके. Yes, ma'am. सो इसका फंक्शन है स्टोरेज, इसका फंक्शन है पॉलिनेशन, और इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस. क्लियर? Yes. ओके. Read centrosomes and plastids from your textbook, then we will proceed for the next. Ma'am, plastics are double membrane. Yes, they are double membrane, and these are the one which can act like just. मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, उसके पास अपना खुद का डीएनए है, बताया था. Yes, ma'am. वे 85% works on this. हाँ, वे उसी तरह ये क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इनमें भी अपना खुद का डीएनए होता है, और ये खुद से अपना सब कुछ मैनेजमेंट करते हैं, ये पूरे बाकी सेल्स पर डिपेंड नहीं रहते हैं. अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फास्ट, देन आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. Ma'am, this discoidal shape का मतलब क्या होता है? डिस्क जैसा. डिस्क खेलते हो आप, वो एक हम फेंक के खेलते हैं वो, क्या मैम? डिस्क जैसा, डिस्क. ओके. देखो अभी क्रोमोप्लास्ट पढ़ोगे तो उसमें कुछ कुछ पिगमेंट्स हैं. अगर येलो है तो अलग है, लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए हैं वो पिगमेंट्स के, वो आपको लर्न करना है. एंथोसियानिन, जेल, कैरोटीन, जेंथोफिल, ऐसे ऐसे नाम होंगे, वो पिगमेंट्स के नाम हैं. Shall I proceed for the next? Yes. Miss, Yes. लिखा है, इस दूसरी बुक्स में लिखा है कि प्लास्टिक के दो डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, जिसमें से एक ग्राना हो. तो ग्राना में stacks of membrane bound flattened discoid sacs containing chlorophyll molecules. मैम, chlorophyll molecules होना ही जरूरी है या क्रोमोप्लास्ट मॉलिक्यूल? नहीं, आप जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के लिए है. ठीक है, वो सिर्फ किसके लिए है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का आपके उसमें स्ट्रक्चर इतना डिटेल डिस्कस नहीं है आपके बुक्स में, बट क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऐसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज देयर, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किए, these are called granas and they are present inside the chloroplast. Okay, they are present inside the chloroplast. These सभी प्लास्टिक ऐसे नहीं होते. नहीं, सभी प्लास्टिड ऐसे नहीं, ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के लिए. मतलब ये जो जगह है, वॉट एवर दिस थिंग यू आर वॉचिंग, आप कॉइन्स अरेंज करते हो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, यस मैम. बस उसी तरीके से ये अरेंज होते हैं स्टैक्स. डिटेल स्ट्रक्चर आपके बुक में नहीं है, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू प्रोसीड. वेट, इट विल कम इन क्लास 10. ओके.
So we will make this diagram of your identity. This diagram, we have to make it in the PowerPoint. You have written in the notebooks, ऐसा? Yes, it's okay. You have not written anything wrong. So why you are worrying? Okay. So chloroplast looks like this. वो भी फ्लूइड से भरा हुआ होता है, उसके पास अपने डीएनए होते हैं, वो खुद डिवाइड हो सकता है. Shall I proceed? Yes. Okay. So next we will see for nucleus. न्यूक्लियस देखते हैं पहले, ठीक है. Okay. So nucleus basically the one which is, मैम yes, मैम हम लोग साइटोस्केलेटन और वैक्यूल्स डिस्कस नहीं करेंगे. that we will see. I think that is granules and vacuoles, all these things are there. Am I right? यस मैम. Yes. वो हम लास्ट में न्यूक्लियस के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है. थोड़ा न्यूक्लियस क्योंकि इज बिट लेंथियर, दैट्स ओके. नाउ सी हियर, न्यूक्लियस इज लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि वो ही सारी चीजें कंट्रोल करता है, डिसाइड करता है सेल को कहाँ क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कब कैसी चीजें होंगी, सब कुछ. न्यूक्लियस एक कंप्यूटर का सीपीयू होता है, बस उसी तरीके से सेल का न्यूक्लियस है जो बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है, ठीक है. नाउ दिस न्यूक्लियस is present in the cell, very clear. Okay, wait. Okay. This nucleus is present in the cell. Okay. अगर न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेन है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब वो एक कवरिंग से कवर्ड है, दैट मीन्स वो एडवांस्ड न्यूक्लियस है. Miss, can you please repeat? I said if the nucleus is having a covering around it, that is called nuclear membrane, presence of membrane is there, then a nucleus is bit advanced. So just see to this that basis on this nuclear membrane you can divide the cell into two categories, that is called prokaryotic and eukaryotic. Okay. Now प्रो मीन्स वो आपका, अभी जो आप लोग बोलते हो गाने सुन के कि प्रो है, वैसा वाला प्रो नहीं है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव. ओके. प्रिमिटिव, अंडर मेच्योर्ड, नॉट मेच्योर्ड, अभी उसका मेच्योरिटी नहीं है, या वॉट एवर यू कैन से. प्रिमिटिव मीन्स विदाउट न्यूक्लियर
membrane. Is it clear to you? Okay. And कैरियोट मतलब nucleus, primitive nucleus. That means it doesn't have nuclear membrane around it. Understood this? ओके, एग्जाम्पल देती हूँ, समझ में आ जाएगा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो डीएनए है वो सेल के अंदर ऐसे खुला प्रेजेंट होता है, कोई उसको कवरिंग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक इन नेचर। अंडरस्टूड? व्हाइल यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू, यू मतलब ट्रू है। सी ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस डिसाइड करती है कि सेल प्रोकैरियोटिक है या सेल यूकैरियोटिक है। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ओके, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसे हम सेल के लिए बोलते हैं तो सेल के पास होता है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के पास होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड सेल के पास होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के पास होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अंडरस्टूड दिस? ओके, और इसके अंदर ये जो डीएनए है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। ओके, क्रोमैटिन और जेनेटिक मटेरियल, एनीथिंग, बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं, एनी वर्ड यू कैन यूटिलाइज। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, बेसिकली जब सेल डिवाइड होता है एट दैट टाइम क्रोमैटिन जो है वो ऐसे क्रोमोसोम बन जाएगा। ओके, ये क्रोमैटिन है वो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। ओके, एंड क्रोमैटिन को आप डीएनए बोल सकते हो। वो जब भी सेल डिवाइड होता है तो वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, एंड these chromosomes are can be seen very clearly under the microscope। आप उनको बहुत अच्छे से देख भी सकते हो। Is it clear to you? मैम मैम प्रोटोप्लाज्म का वो केमिकल कॉम्पोजिशन क्यों नहीं जान सकते हम लोग? किसका? प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग कंटेंट है और उसको अभी तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है, बहुत डिफिकल्ट है उसको स्टडी करना। आपको प्रोटोप्लाज्म पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके वो जिंदा कैसे है, क्यों है, लाइफ कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, सब समझ में आ जाएगा, बट स्टिल इट इज नॉट बीइंग डन। अंडरस्टूड दिस पार्ट?
Yes, ma'am. ओके, सो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्रोमैटिन होता है। ये क्रोमैटिन क्या है? बेसिकली डीएनए है। ये डीएनए जब सेल डिवाइड होता है तो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, so that is how the prokaryote. हम्म, और ये जो इसी न्यूक्लियस के अंदर आप ऐसे एक मास देखोगे जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्लियर? आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ह्यूमंस में है 46 क्रोमोसोम, ठीक है? ये 46 क्रोमोसोम्स जो है वो हमको ह्यूमन बनाते हैं। अगर 47 हो जाएंगे तो भी हम ह्यूमन नहीं बन सकते हैं, और 45 रह जाएंगे तो भी हम ह्यूमन नहीं बन सकते। इट इज फिक्स्ड फॉर 46 क्रोमोसोम। आप किसी भी जगह से ह्यूमन को स्टडी करो, अफ्रीका से, जंगल में से, पहाड़ पे से, पानी में, जहां पे भी उसके क्रोमोसोम कितने होंगे? ओनली 46, विच मेक्स द इंडिविजुअल अ ह्यूमन। वैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जो क्रोमोसोम्स है वो फिक्स्ड इन नंबर है, वो कभी चेंज नहीं होते। इज इट क्लियर टू यू? मैम अगर कम ज्यादा हो जाए तो एनिमल बनते हैं। नहीं तो बनोगे ही नहीं बेटा, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इस क्रोमोसोम के ऊपर ही आपके क्या होते हैं? जीन्स। ओके, इन क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं? जीन्स। ये जीन्स जो है वो हेरिडिटी पास ऑन करते हैं। मतलब आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो ना, मम्मी या पापा की तरह, तो वो क्यों? क्योंकि उनके जीन्स आपको मिले हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ओके, फाइन। इफ दिस इज क्लियर टू यू, शैल वी प्रोसीड? Yes, ma'am. ओके, ठीक है ना? क्या हुआ? हम लोगों ने पढ़ा है कि nucleolus is the densest organelle and is prominent in cells that synthesize proteins. हाँ, क्योंकि वो एसोसिएटेड है राइबोसोम से। ओके, जहां पे भी राइबोसोम्स होंगे वहां पर क्या बनता है? Protein. दैट्स व्हाई। और मैम लिखा है it also contains DNA which synthesizes ribosomal RNA. RNA क्या होता जैसे डीएनए होता है, लेट मी शो यू विद द ड्राइंग। डीएनए जो है वो ऐसा है, है? Yes, ma'am. और आरएनए जो है वो सिंगल है। मैम कोई बॉडी में दोनों हो सकता है। हमारे अंदर दोनों है, डीएनए भी है, आरएनए भी है। RNA का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना बेटा, ठीक है? प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स और आरएनए इन सब की बहुत जरूरत होती है। आरएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और वो सारे टाइप्स मिलकर ये प्रोटीन की फैक्ट्री में काम करते हैं, सो दैट प्रोटीन जो है वो इजीली बन के बाहर आ सके। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that you will study in higher class. You don't have to study them right now. Types of RNA and all that. Miss RNA helps or it makes it. It makes protein, beta.
आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन बनाना पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? मिस आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए है डीऑक्सी हटा दो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब क्लियर है? यस। Sorry for the handwriting because I am not very much good with this new technology of this type of pen. Now we can understand you. Okay. Okay, thank Yes, you. very good. Thank you so much, Peter. Okay. So, Ma'am, wait a minute. yeah. मैम न्यूक्लियोली मतलब क्या होता Nucleoli, है? यस plural of nucleolus. मैम एक से ज्यादा हो सकता है, इंग्लिश में लिखा था 1% काउंट। Yes, वो आराम से हो सकता। Ma'am, done. Done? Good. Okay. Now, the last we will proceed for that. Okay. Now, next one is that we will study is regarding the non-living substances like granules, vacuoles, and living are the cytoskeleton. If you want to see, is that cytoskeleton means the way we have the bones in our body, it is called skeletal system. Am I right? यस मैम। Similarly, cytoskeleton means It is formed by microtubules and microfilaments. yes. Cytoskeleton मतलब skeletal system of cells. ओके, साइटो मीन सेल्स। सेल्स के अंदर भी कुछ कुछ स्केलेटल सिस्टम जैसा होना चाहिए, जैसे हमारी बॉडी में बोन्स है उसी तरीके से सेल्स में भी कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं जो हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सेल को बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट। सो दीज आर कॉल्ड साइटोस्केलेटन। ओके, much detail you don't require it right now, just understand the way you have the skeletal system. Similarly, cells all also having skeletal system, and that is called cytoskeleton, and they are made formed from microtubules मैम or माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट अलग अलग तरह के प्रोटीन से बने होते हैं। yes, एक एक टिब्यूलिन से बना यूजुअली होता है, और एक एक्टिन्स। एक्टिन्स। वो ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना बेटा, ये थोड़ा सा हायर क्लासेस की नीड है। इन 9th क्लास, if you just read and just keep it aside, you don't have to incorporate them in your notes and all that. Is it clear to you? यस Okay, you just read it because if you, I think you are very much interested in knowing all these things, so that is very good. But according to the school requirement and the way your exams require it, right now it is not needed. You just read and remember it and keep it aside. Understood this? Okay, and dead things are like vacuoles and granules, these things. Vacuoles, Sir, ये टॉपिक बुक में है ही नहीं। cytoskeleton, I know.
वो बुक में नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया, बट द वर्ड पॉप्ड आउट एज अ साइटोस्केलेटन, दैट्स व्हाई मैंने आपको बता दिया। सेल का स्केलेटल सिस्टम साइटोस्केलेटन है, बस इतना समझ लो। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके। ना वैक्यूल्स जो हैं वो बड़ी बड़ी खाली स्पेसेस हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर वाटर की प्रेजेंस होती है, बेसिकली फिल्ड विथ H2O और सम लिटिल बिट ऑफ समटाइम्स फ्लूइड। एंड उनका जो मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल्स का, उसके मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। This your voice was cracking. Can you please repeat? I said vacuoles are the empty spaces filled with water, and membrane of vacuoles are called tonoplast. Is it clear? Yes. Okay. Tonoplast is the membrane. Now ये वैक्यूल जो है वो पानी से भरे हुए होते हैं। तो पहले ये चीज समझो, जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में अराउंड 85 to 90% ऑफ स्पेस जो है वो वैक्यूल से फिल्ड हो जाती है। बाकी के ऑर्गेनल्स जो है वो बची कुची जगह में रहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? मोर देन मैम कितना परसेंट बोली? I said around 70 to 90% of space is occupied by vacuoles, and rest of the space is available for other organelles. Clear? ओके मैम। ओके, फाइन। अब ये जो है वो पानी से भरे हुए होते हैं, दैट मीन्स ये सेल को एक टाइटनेस देते हैं। आ रहा है समझ में? यस मैम। उस टाइटनेस को बोलते हैं टर्जिडिटी। उसको क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी। इज इट क्लियर टू यू? टर्जिडिटी। सी, सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो पानी से भरा हुआ है, इसलिए सेल टर्जिड है। अगर वैक्यूल में से पानी बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो सेल है उसका वैक्यूल जो है वो श्रिंक होने लगेगा। श्रिंक होगा, उसकी वजह से क्या होगा? सेल का भी शेप ऐसे हो जाएगा वैक्यूल के आसपास। अंदर वैक्यूल है और सेल भी ऐसे सिकुड़ जाएगा। ठीक है? तो आपने देखा होगा जब चने छोले धूप में सुखाते हैं तो वो क्रम्बल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। देखा है आपने? सन ड्राई करते हैं हम उनको जब भी। यस मैम। छोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वैक्यूम जो है उसका सारा पानी खत्म हो गया है और वैक्यूम सिकुड़ गया है। जब वैक्यूम सिकुड़ जाता है उसकी वजह से साइज भी छोटी हो जाती है। बट आप उसको रात में पानी में डाल दोगे और सुबह देखोगे तो वैक्यूम वापिस सारा पानी ले लेगा और सेल क्या बन जाएगा? टर्जिड। अंडरस्टूड दिस? मैम तो हम लोग टर्जिडिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वैक्यूम गिव्स टाइटनेस टू द सेल एंड दिस टाइटनेस ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्जिडिटी। Vacuole store water in it, that's why they give the perfect means that shape to the cell, and that is called turgidity. If the water is being lost, then the cell will shrink and lose its shape, the original shape. Is it clear to you? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, what? The rigidity of the cell is called rigidity. No, rigidity is different, beta. Turgidity is different. Just see this. आपने बलून्स में पानी भरा है कभी? यस मैम। तो पानी
पानी भरते हो तो बलून की जो बॉर्डर है, जो उसका कवरिंग है, वो कैसे टाइट हो जाता है, Yes. ठीक है ना। तो अगर सपोज मैं आपको एक आ, कोई और चीज देती हूँ, जैसे एक पेपर का एक आपको वो कवर बना के देती हूँ, आपको बोलती हूँ कि इसको अच्छे से पूरा खोल दो। अगर आप उसके अंदर एक बलून रखते हो, बलून में पानी भरोगे, तो वो उस कवर को भी अच्छे से पूरा शेप दे देगा अपने हिसाब से। Yes. सिमिलरली वैक्यूम जब टाइट होता है पूरा पानी से भरा हुआ, तो सेल पूरा फूल जाता है। दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी। रिजिडिटी इज अबाउट स्ट्रेंथ, टर्जिडिटी इज अबाउट द फुलनेस ऑफ द वैक्यूम। इज इट क्लियर टू यू? यस, मैम और अगर वैक्यूम फट गया तो सेल डेड। यस। ओके। एंड एनिमल सेल में भी वैक्यूम्स होते हैं, बट एनिमल सेल में बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में नंबर ऑफ वैक्यूल्स आर मोर and they are large in number and they are comparatively smaller in size. Understood this part? मैम मैम तो फिर वो अगर एक वैक्यूम फटता होगा तब तो सेल नहीं डेड होता होगा। हाँ, नहीं हो। हम Is तो it? फिर वो सब शेप देते हैं। या बेसिकली उनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट, मेंटेनिंग द वाटर लेवल इनसाइड द सेल। अंडरस्टूड दिस? ओके मैम। हाँ, बिकॉज दे स्टोर वाटर। अगर उनके अंदर पानी कम होता है तो वो सराउंडिंग से और पानी ले लेते हैं। दैट मीन्स दे मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द cell. Miss, so we will write that vacuums maintain water level in plants in animals. In all the cells. मैम इसी को ऑस्मोरेगुलेशन कहते Very good. हैं। Very nice term. Osmoregulation. हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था शुरू में, याद है सभी को? यस मैम। यस मैम। वो ऑस्मोसिस किसके वजह से होता था? ये वैक्यूम से पानी लेते हैं और पानी बाहर देते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके। ना, और इसका मेम्ब्रेन देखो, हमने है ना बेटा अभी जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, तो जैसे सेल का मेम्ब्रेन है, जो सेल की कवरिंग है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस की कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैक्यूल की कवरिंग को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं या मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं। ये याद रखना है, ये एग्जाम्स में बहुत काम आता है, ठीक है। मैम अगर हम लोग का जैसे 46 क्रोमोसोम है और उसकी वजह अगर 40 क्रोमोसोम हो गया तो हम लोग क्या माउस बन जाएंगे, क्योंकि माउस का तो 40 होता है। नहीं, तो ह्यूमन का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो, माउस का जो है 40 क्रोमोसोम्स है, वो क्यों 40 जो है वो बन कहाँ रहा है? मदर माउस के अंदर। यस मैम। हम कहाँ बनते हैं? ह्यूमंस के अंदर। यस मैम। अगर हमको 40 क्रोमोसोम्स इनकम्प्लीट डीएनए मिलेगा तो फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। अंडरस्टूड दिस? आप लोग वो मूवीज देखते हो ना, ये एक्स मैन और ये सब देखा होगा आप लोग, देखते हो ना? आई सेड, आप लोग ये मूवीज देखते हो जिसमें एक्स मैन दिखाते हैं, वो पावर्स आ जाती है, कुछ कुछ होने की वजह से अंदर पावर आ जाती है, देखा है ना आप लोगों ने? ठीक है। हाँ, तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना हमारे, ये हमको ह्यूमन बनाते हैं। अगर इसमें ऐसे कुछ चेंजेस आप कर दोगे तो वैसे पावर्स आपके अंदर आ सकते हैं, ठीक है।
वो आप पढ़ोगे क्लास 10th 11th में। 11th में जब पढ़ोगे बायो तब आपको पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज ग्रैन्यूल्स। दे आर द पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे दाने जैसी चीजें रहती है सेल के अंदर। आई थिंक जब भी आप सेल ड्रॉ करते हो तो डॉट 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 होते हैं डायग्राम में ढेर सारे। यस मैम। दे आर ऑल ग्रैन्यूल्स। ये जो ग्रैन्यूल्स है वो क्यों बनते हैं? क्योंकि सेल जो है वो फूड को स्टोर करता है। अब अगर प्लांट सेल है तो बिकॉज हम लोग पढ़े थे स्टार्च ग्रैन्यूल्स। स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। अगर स्टार्च है तो प्लांट की बात हो रही है, ग्लाइकोजन है तो एनिमल की बात हो रही है। आया समझ में? यस मैम, क्योंकि प्लांट सेल में हम लोग स्टार्च, बनाएंगे फिर। हाँ, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और एनिमल सेल के अंदर जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये जब सब स्टोर, सब दोनों ग्लूकोज है, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है, थोड़ा सा फॉर्मेशन में डिफरेंस है। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके। और ये सब पार्टिकल्स है। ऐसे ही फैट लिपिड के भी ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। जो तेल घी सब हम खाते हैं वो भी ग्रैन्यूल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब भी प्लांट सेल को भूख लगती है तो वो इनमें से कुछ ग्रैन्यूल्स को खा सकता है। जैसे हम, मम्मी हमारे लिए घर पे रखती है ड्राई नाश्ता बना के, जब आपको चलते फिरते भूख लगती है, क्लास में भूख लगती है, तो आप कुछ कुछ खाते रहते हो। यस मैम। हाँ, तो ये ग्रैन्यूल्स जो है वो स्टोर्ड फूड है। जब भी सेल को भूख लगती है तो वो इन ग्रैन्यूल्स को खा सकता है। अंडरस्टूड? यस मैम। Okay, so this I think finishes the chapter over here. A little bit part is remaining regarding protoplasm, and every activity of living organism is outcome of cellular activity that we will see right now. हम लोग पढ़े थे कि अगर प्रोटोप्लाज्म को सेल से निकाल के अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देते तो फिर वो सेल से निकालने से ही डेड हो जाता है, फिर सेल में डालने से लिविंग हो जाता है, वायरस की तरह। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ही सेल होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ओके, इसको साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन लिख सकते नहीं, हैं, सेल कंपोनेंट्स प्लस सेल मेम्ब्रेन। दैट इज व्हाट आई सेड। साइटोप्लाज्म में सब कुछ आ गया, फ्लूइड भी आ गया प्लस ऑर्गेनल्स भी आ गए। इज इट क्लियर टू यू? यस। दोनों चीजें इंक्लूडेड है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अगर ये दोनों चीजें हैं तो सेल तो बन गया। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट है। इस लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म। प्लाज्म। ओके, ओके मैम। ओके, सो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक समझ लिया आपने? यस। कैरियोट वर्ड जहां पे भी होता है वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। ओके, प्रो मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब ट्रू, सच वाला। और वो क्यों सच्चा है? क्योंकि उसके आसपास कवरिंग है। अगर डीएनए के आसपास कवरिंग नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? प्रोकैरियोट।
ओके ना। सेल जो है वो सारी एक्टिविटीज करता है बेटा, ग्रोथ करना, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म करना, रिपेयरिंग करना, ये सब कुछ सेल की जिम्मेदारी है। हर एक सेल ये काम करता है आपकी बॉडी में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ग्रोथ, आपकी हाइट बढ़ना, आपके विड्थ बढ़ना, ये जो सब है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज वाई। ठीक है। फिर उसके बाद रिपेयरिंग, रिपेयरिंग मतलब आपको इतने चोट लगती है या कुछ होता है, कुछ चीज खराब हो जाती है, तो पूरे सिस्टम को रिपेयर करना, उसको वापस पहले जैसे कर देना, वो भी सेल अपने आप से करता है। ठीक है। अब जैसे सपोज इम्यूनिटी अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि बुखार आता है जब हमको, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो खराब हो जाती है थोड़ी थोड़ी, उनको ठीक कर देना वापस, वो भी सेल खुद करते हैं। ठीक है। फिर सेल अपना खाना भी खुद खा सकते हैं, न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं, एक्सक्रीशन भी कर सकते हैं, साथ में वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, अभी जो मेरे स्किन पे जो सेल्स है, आपकी स्किन पे जो सेल्स है, ये सब सांस ले रहे हैं अंदर, आपको पता है? आपकी तरह नहीं ले रहे। हाँ, ठीक है। तब वो सब खुद भी कर लेते हैं, हम लोग को नो। क्योंकि हाँ, सेल अपना जो रेस्पिरेशन है वो खुद तो कर रहा है, तो हमको नोज क्यों दिया? क्योंकि अगर हम नोज के थ्रू आउटर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो वो सेल जो अपना काम कर रहे हैं वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? यस। ठीक है। देखा ना, अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया यस मैम। है ना? तो वो अभी जो न्यू है इसलिए पता नहीं, लेकिन जो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, दैट सेल जो है वो हमारे सारे फंक्शंस करता है, रेस्पिरेशन से लेके रिपेयरिंग, इवन आप जो ये खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करना, सुनना, स्मेल करना, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विथ सेल। ओके। ओके मैम। Okay, so I will give you one homework, is that read the chapter. Okay, your homework is write down, read the chapter. Okay, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ रीड करना है, और साथ में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एंड ये सब आपको कल दिखाना है। बता रही हूँ, बायोलॉजी नोटबुक्स में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, यू हैव टू राइट ओनली आंसर्स, अंडरस्टूड दिस? एक्सक्यूज मी मिस, हाँ, मिस ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग को बायोलॉजी होमवर्क कॉपी में करना होगा या फिर पेन कॉपी में? आप मुझे कौन सी कॉपी दिखाओगे उसी कॉपी में करना है। मैम मेरी होमवर्क। हाँ, ठीक है। सी, आपको पूरा चैप्टर रीड करना है, और यहां से लेकर ये सब कुछ आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हो, सारे के सारे आपको करने हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक का हेल्प ले सकते हो। सी, राइट योर आंसर्स ओनली फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, नथिंग एक्स्ट्रा इज नीडेड, अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। अच्छा,
अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है या आपको किसी क्वेश्चन को कैसे लिखना है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो सब कुछ हम कल डिस्कस करेंगे, अगर कल बायो का क्लास होता है तो। अगर नहीं तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस। अंडरस्टूड दिस? क्लियर? Yes, ma'am. ओके, यू हैव टू सी, कोई एक दूसरे से कॉपी मत करना प्लीज, ठीक है, और गूगल तो बिल्कुल भी मत कर, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी नोटबुक अच्छे टेक्स्ट बुक में से अच्छे से पढ़ो, सारे आंसर्स आपको आपके चैप्टर में मिल जाएंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हम लिखे कैसे इस आंसर को, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होना चाहिए, या ये आंसर हमको नहीं मिल रहा है या नहीं समझ आ रहा है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. हाँ, तो आपको कॉपी नहीं करना है सबसे, प्लीज डोंट डू दैट, ओके। और दूसरी चीज ये कि आपको सब लिखना है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर सब कुछ लिखना है। नो एक्सक्यूज के मैम लॉन्ग था इसलिए नहीं लिखा, शॉर्ट था इसलिए नहीं लिखा, ऐसा नहीं। फर्स्ट नंबर से सब कुछ स्टार्ट करोगे और सब कुछ लिखोगे। मल्टीपल चॉइस के भी आंसर्स आपको लिखने हैं अपने टेक्स्ट बुक में। ऐसा नहीं है मैम मैंने टेक्स्ट बुक में टिक कर दिया, वो नहीं चलेगा, ठीक है, सब कुछ लिखना है अच्छे हमें से। जिसका आंसर बुक में नहीं दिया रहेगा वो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप कुछ नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, और जब पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो बाद में तो पेजेस खाली है ना, तो हम उसमें वो चीज सॉल्व कर लेंगे। तब मैंने क्या बोला आपको कि आपको जहां पे भी डाउट हो आप छोड़ देना, हम कल सबको मतलब नेक्स्ट क्लास में सबको डिस्कस कर लेंगे। अंडरस्टूड? गुड, फाइन, सो यू कैन लीव एंड रीड योर टेक्स्ट बुक्स थारली बेटा, टेक्स्ट बुक में से ही सारा काम करना बस, नथिंग एल्स आई वांट। मैम रीड करके फिर इसी में लिख लेंगे। Okay, that I have to ask. Just, I think yes, you have to rejoin. Okay. Miss, ये सेम ही मीटिंग नंबर और पासवर्ड रहेगा। That I don't know, beta. I will ask. Okay. I will ask the sir who is sitting outside. Okay, मैम। I don't know regarding that. Okay. So, हम क्योंकि कनेक्ट होने में बहुत टाइम से okay, तो आप अभी इस मीटिंग में रहो और मैं पूछ लेती हूँ। If you have to leave, then I will tell you. मैम। Okay. ओके मैम। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। यस मैम। गुड, सो यू कैन हैव अ ब्रेक राइट नाउ, ईट समथिंग एंड कीप योरसेल्फ फिट। थोड़ा कुछ खाते रहो, खाली पेट मत बैठो। हेलो। हेलो, यस डियर। एंजॉयड ऑनलाइन क्या आदित्य? ओह ऑफलाइन इज बेटर। Yes, offline is better. अरे कनेक्ट करने में इतना टाइम वेरी इंटरेस्टिंग। अरे कनेक्ट करने में इतना टाइम लगा था मेरे को कि कनेक्टिंग में किस किस का प्रॉब्लम हो रहा है? मेरा हुआ था, फिर उसके बाद अभी मैं रूम चेंज किया था। मेरा तो वीडियो जब बंद था तभी तो मैंने एक्सक्यूज मी? फोन था। एक्सक्यूज No excuse will be given. No. अरे हो एक्चुअली जो नंबर मेरा ग्रुप में एडेड है ना वो फोन मेरे पास अभी है नहीं, तो मेरा नंबर पे कोई फॉरवर्ड कर देगा मीटिंग बेटा। आईडी केमिस्ट्री वाला। अरे यही मीटिंग आईडी। Listen, अच्छा listen, क्या चीज listen. वाला? लिसन वेट, केमिस्ट्री का अगर बदल गया यही मीटिंग आईडी है इसी